हाँ जी, hello friends. Today's topic is why does demand curve slope downward? Like in this diagram, demand curve DD बनी हुई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ slope है downward है negative slope है means left to right है जो demand curve बनी हुई है but इसਦੇ 5 reason ने first ਕੀ है law of diminishing margin utility. law of diminishing margin utility ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੋ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੈਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਮਸ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ। ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਚੇਂਜਸ ਏ ਪਰਸਨਸ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 300 रुपीज़ पर डे है ठीक है और जो अपने एप्पल्स की प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर kg है। सो तुसी अपनी इनकम दे नाल किन्ने एप्पल्स खरीद सकते हो 6 kg। सो जिहदे नाल अगर इसकी प्राइस थोड़ी डाउन हो जाए अगर 50 तो 40 हो जाए इसकी प्राइस तो इहदे नाल की इफैक्ट होएगा। सो ये की है 60 रुपीज़ है लैफ्ट हो जाएंगे मतलब 60 रुपीज़ बच जाएंगे मतलब ये रियल इनकम है अपनी इनक्रीज़ होगी। काहदे नाल इनक्रीज़ हुई है अगर प्राइस है डाउन हुई है ठीक है जी। अगर थर्ड आ गया सबस्टिट्यूशन इफैक्ट। ये इफैक्ट अपने को की दस रहे कहते सबस्टिट्यूशन इफैक्ट इज़ दैट इफैक्ट ए चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स हैज़ ऑन क्वांटिटी डिमांड। कहने का मतलब की है देखो अपने को सबस्टिट्यूट गुड्स होंगे कि ने लाइक टी एंड कॉफ़ी है ठीक है या फिर आप कह सकते हैं पैप्सी कोला कोका कोला। कहने का मतलब की है वो वालियां गुड्स होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਟੀ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਅਗਰ ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀ ਫॉर ਕੌਫੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਕੌਫੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੀ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਚੀਪਰ ਗੁੱਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਨॉट ਅਲਟਰਡ। ਸੋ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ फोर्थ आ गया जी अपने को साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप अपने को की है वैन कहते ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स जिस टाइम अपने को अपनी गुड्स की प्राइस है फॉल हो जाती है दैन मैनी कंज्यूमर हु आर इनेबल टू बाय दैट कमोडिटी एट इट्स प्रीवियस प्राइस कम्स फॉरवर्ड टू बाय इट। सो यदा मतलब की होगा जोड़े कंज्यूमर ने वो इसनों खरीदण के योग हो जाएंगे ठीक है जी। मतलब कंज्यूमर है ज़्यादा कंज्यूमर इसनों बाय करन लग जाएंगे जिसकी प्राइस है घट हुई है। फिफ्थ आ गया डिफरेंट यूजेस। हुण सम गुड्स किस टाइप दी होंदियां ने जिन्हां दे डिफरेंट यूजेस होंदे ने लाइक मिल्क ठीक है। मिल्क के देखो काफ़ी ज़्यादा यूजेस ने आप उसनों फॉर ड्रिंकिंग भी कर सकते फॉर मेकिंग कर्ड चीज़ या लाइक एनी डिशेज़ दे विच आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसकी प्राइस हाई है सो कंज्यूमर में बाय ओनली मिल्क ओनली फॉर ड्रिंकिंग। सो अगर इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो आप मिल्क नूं काहदे लई यूज़ करांगे ओनली ड्रिंकिंग दे लई। बट अगर इसकी प्राइस लो हो जूगी सो आप इसनूं लाइक कर्ड चीज़ या एनी डिशेज़ दे लई यूज़ कर सकते हैं। ये सीगे अपने कोले वाई डज डिमांड करव स्लोप डाउनवर्ड मतलब इसके रीजन सी। अगे एक्सैप्शनस आ गई एक्सैप्शनस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सैप्शन का मतलब की है भी जिन्ना उपर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होंदा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਪਵਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਅਪਵਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਲੋਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ। ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੂਚਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ज़्यादा होगी, मतलब इसकी डिमांड उस टाइम ही इंक्रीज़ होगी जिस टाइम इसकी प्राइस है हाई होगी। ठीक है, देखो आप अगर कह रहे हैं प्राइस भी हाई होगी, डिमांड भी हाई होगी, तो ही इसकी पॉजिटिव स्लोप बनेगी। ठीक है जी, अगे सैकेंड है इगनोरेंस। इगनोरेंस का मतलब की होंगे, कई बार कंज्यूमर अपने माइंड के की सोच लेंदा है, की जज कर लेंदा है। कहना मतलब की है भी अगर आप कह सकते हैं भी प्राइस लो है तो जी कमोडिटी की क्वालिटी है वो भी लो है, अगर प्राइस हाई है तो कमोडिटी की क्वालिटी भी हाई है। बट कई बार ये चीज़ रॉन्ग होती है। ठीक है, सो कई बार अगर ये सोच रहे हैं तो अपनी इगनोरेंस है। ठीक है, हर बार सही नहीं होंदा। अगे थर्ड है जी गिफन गुड्स। गिफन गुड्स किहड़ियां होंदियां ने, वो लाइक एक टाइप दियां इनफीरियर गुड्स ही होंदियां ने। ठीक है जी, जिहदे विच ये असल दे विच सर रॉबर्ट गिफन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ एक इकनॉमिक्स है, सर रॉबर्ट गिफन, उसके अकॉर्डिंग लिखिया होया, जिहदे करके आपां इहनूं गिफन गुड्स बोलते हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है, कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ जिस टाइम किसी चीज़ की प्राइस हाई हो जाती है तो उसकी डिमांड भी हाई हो जाती है। कहने का मतलब जिस टाइम बाजरा है, ठीक है, अगर बाजरे की प्राइस लो है, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी लो होगी, अगर उसकी प्राइस हाई है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, आप गिफन गुड्स के विच कह सकते हैं ये। अगे आ गया जी अपने को एक्सपैक्टेशनस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਮੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अगर आपको लगता भी प्राइस फॉल होगी फ्यूचर के इसकी, ठीक है, भी प्राइस घट होगी तो की होगा इन प्रैजेंट के उसकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक्सैप्शनस ऑफ एक्सैप्शनस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब वो वालियां कुछ पॉइंट्स ने जिहदे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है जी, सो अपने 2 टॉपिक ने कंप्लीट हो गए, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड एक्सैप्शनस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके जी।